हाँ जी बच्चों, देखो ਆਪਾਂ क्लास 10th ਦਾ ਲੈਸਨ ਨੰਬਰ 4 कर रहे हैं। दो घाती समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बेटा फोकस क्लियर ना होने करके वीडियो खराब हो जाती है, बोर्ड भर जाता है। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो इस फॉर्म च आती है ax² + bx + c = 0, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ x ਦੀ ਪਾਵਰ 2 है और x ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ है वो कदे भी 0 नहीं होएगा। क्यों 0 नहीं होएगा? जे ए 0 हो गया तो ये पूरी की पूरी टर्म उठ जाएगी, फिर वो लीनियर पेयर रह जाएगा। इस करके पहली वाला ਜਿਹੜਾ डिग्री 2 वाला ਜਿਹੜਾ वेरिएबल है ਉਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੈ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ 0 ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਹਦੀ ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ 2 ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਦੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਨੰਬਰ 4.1 ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ, ਇੱਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਹੈਗਾ x - 2 का होल स्क्वायर + 1 = 2x - 3। ये इज इक्वल टू का मतलब है कि इक्वेशन है। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ कि ਇਹ है क्वाड्रेटिक कि नहीं है। देखो a - b का होल स्क्वायर खोलांगे, a² + b² - 2ab + 1 बाहर हैगा ते 2x - 3 हो गया ते x² - 2 2 4x हो गया। ठीक है ना, 2x ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ -2x ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 4 और 1 कितना हो गया 5 और -3 ਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ +3 हो गया तो 0 ਤੇ x²। अब 4x और 2x कितना होया 6x और 5 और 3 कितना होया 8 हो गया। ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि ਇਹਦੀ डिग्री 2 है और ਇਹਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ 0 नहीं है। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ एक्सरसाइज 4.1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। x + 1 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਆਇਰ ਔਰ ਬਰਾਬਰ ਹੈ 2x - 3 ਦੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲਣਾ ਪਏਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਿਆਣਾ ਪਏਗਾ। x² + 1² + 2 * 1 * x और इधर खोलेंगे तो 2x - 6। इधर हो गया x², ये 2x हो गया, ये 1 हो गया। ठीक है, इधर 2x - 6 है, आमने सामने 2x कट देते हैं। x² + 1 और -6 इधर आके +6 हो गया तो ये 0 हो गया। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्योंकि ਇਹਦੀ डिग्री ਜਿਹੜੀ है 2 है और बीच वाला ਜਿਹੜਾ x है वो 0 होने नाल कोई फर्क नहीं पैंदा। अकेला ए भी 0 हो जाएगा ਤਾਂ भी कोई फर्क नहीं पैंदा, ए एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ਜਿਹੜਾ है ਤੁਹਾਡਾ x - 2 x + 1 x - 1 x + 3 ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਚ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਚ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ x ਨੂੰ x + 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, फिर -2 ਨੂੰ फिर x ਨਾਲ फिर -1 ਨਾਲ +1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। इधर भी मल्टीप्लाई करांगे, एक एक करके चारां ਨੂੰ मल्टीप्लाई करांगे आपस ਵਿੱਚ। आमने सामने x² कट जाएगा तो अपने को लीनियर इक्वेशन रह जाएगी जो कि क्वाड्रेटिक नहीं है। ठीक है, उस तो बाद नेक्स्ट देखो ये वाला क्वेश्चन x + 2 ਦਾ होल क्यूब है 2x और x² - 1 है। ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ a + b ਦਾ ਹੋਲ ਕਿਊਬ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਵਾਂਗੇ a³ + b³ + 3ab a + b और उधर दूसरी साइड ब्रैकेट खोल लांगे। ठीक है ना, अपने को x³ इधर 8 हो गया, 3 2 6 x² और 3 2 6 2 12 x और इधर ਆਪਾਂ ਖੋਲਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਆਵਾਂਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ 0 ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਕੱਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, जोड़ के साडे कोल क्या बचा x³ + 8x² + 14x + 8 = 0। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ क्यूबिक इक्वेशन बन गई हैगी ਜਿਹੜੀ कि क्वाड्रेटिक नहीं ਹੁੰਦੀ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है x³ - 4x² - x + 1 और इधर हैगा x - 2 ਦਾ होल क्यूब। ठीक है, इधर ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ सीधा सीधा ही है, उतार लिया, कुछ भी नहीं करना। दूजे पासे a - b ਦਾ होल क्यूब ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾ ਕੇ x³ - 8 - 3 * x * 2 और x - 2 ਲੱਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰੈਕਟ ਖੋਲਾਂਗੇ a - 6x² ਹੋਏਗਾ, a + 3 2 6 2 12 x ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ x³ और x³ ਆਮਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਾਂ ਕੱਟ ਦਵਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਬਚਿਆ ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਲੈ ਆਓ। ਜਦੋਂ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 2x² - 13x + 9 = 0 ਜੋ ਕਿ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हाँ जी स्टूडेंट्स, देखो ਜਿਹੜੇ वर्ड प्रॉब्लम्स ने एक्सरसाइज 4.1 चलती पई है अपनी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है। ਇਹਦਾ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ
ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਰੈਕਟੈਂਗੂਲਰ ਪਲਾਟ ਹੈਗਾ, ਆਇਤਾਕਾਰ ਪਲਾਟ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ 528 ਮੀਟਰ ਸਕੁਆਇਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਓਕੇ, ਖੇਤਰਫਲ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਖੇਤਰਫਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਖੇਤਰਫਲ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਲੰਬਾਈ ਗੁਣਾ ਚੌੜਾਈ, ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੰਬਾਈ ਗੁਣਾ ਚੌੜਾਈ, ਠੀਕ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੀ ਬ੍ਰੈਡਥ ਤੋਂ ਦੇ ਦੁੱਗਣੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਧ ਹੈ, ਟਵਾਈਸ ਆਫ ਬ੍ਰੈਡਥ ਪਲੱਸ 1 ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਲੈਟ ब्रेड्थ इज इक्वल टू एक्स, तो लेंथ कितनी हो जाएगी? 2x प्लस 1 हो जाएगी। तो x इंटू 2x प्लस 1 क्या हो जाएगा? 528 हो जाता है, क्योंकि एरिया क्या, लंबाई गुना चौड़ाई। तो इसको खोल लो, 2x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 528 और 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखो ये है आपका c बाय ए और b बाय ए सम होता है, ठीक है ना। 528, पहले तो 528 को मल्टीप्लाई करो 2 से, क्योंकि c और a का प्रोडक्ट है और प्लस माइनस करके आपको यहाँ पे सम होता है, यहाँ पे क्या होता है? सम। और ये दोनों क्या होते हैं? प्रोडक्ट, ठीक है ना। तो 2 8 जा 16, 2 जा 4 1 9, ठीक, और 1096। अब इन इसके फैक्टर्स इस हिसाब से करना है कि प्लस माइनस करके हमारे पास क्या आ जाए? 1 आ जाए। तो अब हो जाएगा 2 5, ये अगेन 2 528 से जाएगा, फिर 2 ये 2 2 जा 4, 2 6 जा 12 और 2 4 जा 8, फिर 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 2 2 जा 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, फिर उसके बाद अगेन ये 2 से 3 3, फिर 3 से 1 1, फिर 11 से 1। तो अब आप ये देखो कि किस हिसाब से 1 बन रहा है। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 48 और 33, या फिर 66, 11 3 जा 11, 3 2 जा 6, 2 जा 12, 2 जा 24, 2 जा 48। मार्शल चुप, इन्हों इस तरीके नाल करना है कि प्लस माइनस करके अपने कोल 1 आ जाए, ये अपना सॉल्व हो जाएगा। टू जा 4, 2 जा 8, 8 3 जा 24, 2 2 जा 4, 2 जा 8, देन 8 3 जा 24 और 2 2 जा 4 तभी नहीं बन रहा है। इतना आ गया 11, 11 या था 33, ਤੇ 2 2 ਦਾ 4, 2 ਦਾ 8, 2 ਦਾ 16, 2 ਦਾ 32, हाँ 32 और 33 ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਨਾ ਆਪਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ 11 3 ਦਾ 33 ਔਰ ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਣ ਗਏ 32, ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ 2x ਸਕੁਆਇਰ ਪਲਸ 33x ਮਾਈਨਸ 32x ਮਾਈਨਸ 528 इज इक्वल टू 0, ठीक है। इसमें 3 ਨੂੰ सही तरीके ਨਾਲ लिख देनी है। ओके, ते प्लस माइनस करके 1 नहीं आ गया है ना, और मल्टीप्लाई करके 1096 आ गया, ठीक है। ते ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਾਮਨ ਲਵਾਂਗੇ? x ਕਾਮਨ ਆ ਗਿਆ, तो 2x plus 33 रह गया, और ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਆਪਾਂ 32 ਕਾਮਨ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਚੋਂ 16 ਕਾਮਨ ਲਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, तो 2x plus 33 अपने ਕੋਲ ਕਾਮਨ आ गया। अगेन 2x plus 33 रह गया और ਇੱਥੇ अपना x minus 16 रह गया इज इक्वल टू 0। ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ आइदर 2x plus 33 is equal to 0, ठीक है, और x minus 16 is equal to 0। तो इसमें तो माइनस 33/2 हो गया जो कि अजीब सा है, तो इसमें x is equal to 16 हो गया, ठीक है। तो एक अगर ब्रेड्थ जो है 16 हो गई तो लेंथ कितनी हो जाएगी? 2 इंटू 16 प्लस 1, यानी कि 32 प्लस 1 33, ठीक है। इससे आपका क्या हो जाएगा? इसका 4.1 का आंसर निकल के आ गया। इस तो बाद नेक्स्ट जेड़ा है, दो लगातार
ਧਨਾਤਮਕ ਸੰਪੂਰਨ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ 306 ਹੈ। धनात्मक जो दो लगातार वन नंबर, ये इसका सेकंड पार्ट है, वन नंबर इज इक्वल टू एक्स है, तो अदर नंबर क्या हो जाएगा एक्स प्लस वन। दो लगातार धनात्मक संपूर्ण संख्यावां दा गुणनफल, और जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट बताया हुआ है 306, यानी कि एक्स स्क्वेयर एक्स इंटू एक्स प्लस वन इज इक्वल टू 306 है, तो एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स इज इक्वल टू 306 है, तो एक्स स्क्वेयर माइनस प्लस एक्स माइनस कर लो 306 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब 306 के फैक्टर्स इस हिसाब से निकालने हैं हमें कि हमारे पास 1 आ जाए। 306 जो है तो 2 ये 15 153 से जाएगा, फिर 351 से जाएगा, ठीक है, फिर 17 3 51 317 से जाएगा, 3 3 9 2 18, इन तीनों को अलग कर लो, ये अलग हो गया है ना, 17 1 17, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 18 एक्स माइनस 17 एक्स लिख सकते हैं इसको, ये 306 इक्वल टू 0। ठीक है, तो x कॉमन आ गया, x प्लस 18 और 17 कॉमन आ गया, x प्लस 18, तो x प्लस 18 कॉमन आ गया और x माइनस 17, आइदर x प्लस 18 इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा x माइनस 18 के बराबर हो जाएगा, और x माइनस 17 इज इक्वल टू 0, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 17 हो जाएगा। ठीक है ना, तो वन नंबर जो है 17 है, अदर नंबर क्या हो जाएगा 17 प्लस 1 18 हो जाएगा, निकल आ गया। ठीक है, खत्म हो जाता है बोर्ड जल्दी जल्दी। नेक्स्ट देखो, रोहन दी मां उस नालों 26 साल बड़ी है। थर्ड वाला जो है देखना है हमने, 2 मिनट पंखा चला देते हैं तो ये जल्दी से सूख जाएगा। कहते रोहन की मां उस नालों 26 साल बड़ी है, ਹੁਣ ਤੋਂ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਦਾ ਗੁਣਨਫਲ ਜਿਹੜਾ 360 ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ठीक है, तो ਆਪਾਂ ठीक है, रोहन दी मां उस नालों 26 साल बड़ी है। लेट रोहन्स एज, रोहन्स एज इज इक्वल टू एक्स, तो मदर एज कितने हो जाएगी x प्लस 26। ठीक है, कहते हूं तो 3 साल बाद, आफ्टर, यहीं पे कर लेते हैं, आफ्टर 3 इयर्स रोहन की एज कितनी हो जाएगी, रोहन्स एज x प्लस 3 हो जाएगी, 3 साल जुड़ गए, मदर एज कितनी हो जाएगी x प्लस 26 प्लस 3 हो जाएगी, यानी कि x प्लस 29 हो जाएगी। अब क्या कह रहे हैं ये कि 3 साल बाद उन्होंने दिया उम्र का गुणनफल, यानी कि x प्लस 3 का गुणनफल x प्लस 29 के साथ मिलके क्या हो जाएगा 360 हो जाएगा। इसको हमने सॉल्व करना है, x को पहले अलग अलग, एक्स स्क्वायर प्लस 29x, फिर 3 के साथ 3x प्लस 3 इंटू 29, 3 9 27, 3 2 6 और 2 8, ये हो गया 360। अब एक्स स्क्वायर 29 और 3 32x, और इधर हो जाएगा 87 माइनस 360 इक्वल टू 0। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 10 में से 7 गया 3, 5 15 में से 8 गया 7, बचा 2। अब 273 के इस तरह से फैक्टर करने हैं कि प्लस माइनस करके 32 आ जाए। 273 3 से जाएगा, 391 जा 13 7 91 होते हैं। ठीक है, अब ये देखो 7 3 जा 21 और 13, कुछ बन रहा है, 10 में से 7 गया 3, 15 में से 8 गया, 15 में से 8 गए 7, तो 2 बचे ना, तो 3 9 जा और 1 जा, फिर 13 7 जा 91 होता है,
तो 13 3 ज़ा 39, 39 में से 7 गए, 32 आ गया। हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस 39x माइनस 7x माइनस 273 इज इक्वल टू 0। एक्स कॉमन लेंगे, एक्स प्लस 39 और माइनस 7 कॉमन लेंगे, एक्स प्लस 39 इज इक्वल टू 0। एक्स प्लस 39 कॉमन आ गया और एक्स माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये वाला आप कंसिडर नहीं करते, ठीक है ना, इसको कंसिडर करते हैं क्योंकि इसमें x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू 7 आ जाता है, ठीक है ना। तो रोहन की एज कितनी आ गई, रोहन इज इक्वल टू 7, तो मदर की एज कितनी आ गई, 7 प्लस 26 इज इक्वल टू 35। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल नाल तय करती है, ठीक है ना, जो डिस्टेंस है वो 480 किलोमीटर है, ठीक है ना। और जेकर इसकी चाल 8 किलोमीटर पर आवर घट होंदी तो उसकी दूरी तय करने ਲਈ 3 घंटे ਵੱਧ ਸਮਾਂ लगता। तो लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो देखो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम होता है। तो फिर इस हिसाब से टाइम क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो गया, ठीक है। अगर देखो डिस्टेंस कितना है हमारा t1 इज इक्वल टू 480 अपॉन x, ठीक है, इतनी बात समझ आई आवर्स में। अब वो कहते हैं कि जेकर इसकी चाल 8 किलोमीटर घट होंगी तो स्पीड 2, ये स्पीड 1 t1, स्पीड 2 कितनी है x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम कितना होगा, तो टाइम डिस्टेंस तो उतना ही है, डिस्टेंस अपॉन s2 हो जाएगा, यानी कि 480 अपॉन x माइनस 8 हो जाएगा, ठीक है ना, r हो गए। अब वो कहते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 3 घंटे है, मतलब कि जब स्पीड कम होएगी तो टाइम ज्यादा लगेगा, ठीक है, स्पीड कम कर दी तो टाइम ज्यादा लगेगा, t2 में से t1 माइनस करेंगे तो कहते 3 घंटे होंगे, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 3 घंटे है। ये है 480 बटा x माइनस 8 और ये है 480 बटा x इज इक्वल टू 3। बस अब आप इसको एलसीएम ले लो, ठीक है ना, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये नीचे x इंटू एक्स माइनस 8 हो जाएगा, ये 480x माइनस 480x माइनस 8 इज इक्वल टू 3, ये 480x माइनस अगेन 480x माइनस माइनस प्लस 480 इंटू 8, और ये दोनों चीजें जो है ऊपर चली जाएंगी, 3 से मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 3x x माइनस 8, और ये देखो ये तो आपस में कट गए, ये बचा 8 8 जा 64, 6 कैरी, 8 4 जा 32 और 6 38, और यहाँ पे हमारे पास आया 3x स्क्वायर माइनस 3 8 जा 24x, और इसको भी उधर ही ले जाओ, 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इज इक्वल टू 0। ये जो तीनों जो नंबर है वो 3 से डिवाइड हो रहे हैं, ठीक है, तो इस सारी इक्वेशन को डिवाइड बाय 3 कर सकते हैं, डिवाइड इक्वेशन बाय 3, तो क्या हो जाएगा कि ये एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 1 जा 3, फिर अगेन 3 2 जा 6, फिर 3 8 जा 24, 0 इज इक्वल टू 0। तो अब इसका फैक्टर्स करने हमें आसान हो जाएंगे, 1280 को हमें 1280 के फैक्टर्स इस हिसाब से करने हैं कि हमारे प्लस प्लस माइनस करके 8 आ जाए, तो 2640 2320, ठीक है, और 2160 280 का हो जाएगा, और 2 अगेन 40 से हो जाएगा, 2 2 4 2 8, ये हाँ ये 32 आ गया, और ये हमारा 40 आ गया यहाँ पे। शॉर्टकट में हम इसको 40x प्लस 32x हम छोड़ सकते हैं, मतलब हमें पूरा करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, कई बार हमें थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना पड़ता है, ठीक है ना। तो x हो गया x माइनस 40 और प्लस 32 कॉमन आ गया, x माइनस 40, x माइनस 40 और x प्लस 32। देखो मार्शल चुप कर, जो माइनस वाला होता है ना हमें वो ले लेना चाहिए, उससे क्या होता है कि हमारी चीज पॉजिटिव में आ जाती है, ठीक है ना। x माइनस 40 इज इक्वल टू 0 है, तो x क्या हो जाएगा 40, और x हमारी क्या है स्पीड है, तो इसका मतलब 40 किलोमीटर
पर आवर से गाड़ी चल रही है। ओके, आई होप आपको समझ आ जाएगा।